No, Uh, now it is being recorded. yes, sir. So I have asked him to give 60 questions. He has given questions. First, let Hmm. me read out the questions he has given. First is Okay, I asked some 15 questions on human relations. He has okay, given sir. like this: how do you resolve conflicts in a team to maintain positive work environment? Question number two: can you describe a situation where you had to motivate a teammate under pressure? Number three, what strategies do you use to build trust among colleagues and clients? Number four, how would you handle scenario where two team members strongly disagree on a project approach? Question number five, why is emotional intelligence important in dealing with clients and co-workers? Question number six, describe a time when you had to give constructive feedback to a peer. Peer means colleague. Question Colleague. number seven, what is your approach to managing stress in a fast-paced environment? Question number eight, how do you ensure effective communication across different departments in an organization? Question number nine, describe an instance where you delegated task effectively to achieve a tight deadline. Number 10, what role what role does empathy play in delivering high quality customer service? Number 11, if you notice a colleague is underperforming, how would you address the issue? Question number 12. Question number 12. What steps do you take to stay calm and professional under difficult circumstances? Question number 13. How do you maintain a balance between assertiveness and diplomacy while dealing with internal stakeholders? Question number 14. Explain a time you managed cultural differences with your team. Question number 15. In your opinion, how does transparency contribute to better human relations? These 15 are the questions on human relations. Would you like me to read the answers for these, or would you like me to go with other questions Uh, on ECGC? sir, मैं क्या अपने आंसर्स दूं? Can I Yeah, answer yeah. One that can from be done. myself? That can be done. 1 minute. But sir, मैं One. I No, think कि I can answer in Hindi better. no problem. Absolutely Hmm. no problem. Hmm. Hmm. Absolutely no Okay. problem. So what we will do, I will read the question. Okay. You will answer me first in Hindi. Later Okay. on, I will read Hmm. the answer given by Hmm. the artificial intelligence in English. Then Okay. we will check up these two. Accordingly, you can revise it if necessary. Mr. Okay. Mohit Jaishwal. First Yes, sir. question: how do you resolve conflicts in a team to maintain a positive work environment? सर, मुझे ऐसा लगता है कि जब सबसे पहले जब हम किसी भी टीम का पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले हमें मैं हटाना होता है, यानी आई को हटा के काम करना होता है। जब हम वी वाला एटीट्यूड रखते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे वहां से दूर हो जाते हैं। और दूसरा, यदि टीम में कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता भी है, यानी हमारा वर्क असाइनमेंट पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, तो दूसरा कॉन्फ्लिक्ट हमारे बीच में सबसे बड़ा होता है कि अगर वर्क प्रोजेक्ट हम थोड़ा सा नेगेटिव साइड में चल रहे होते हैं या चीजें नहीं हो पा रही होती हैं, तो हम किसी पर्सनल बंदे को टारगेट करके या किसी पर्सनल एक दो लोगों को ढूंढ लेते हैं। जबकि हमें ये देखना चाहिए कि सक्सेस भी टीम की है, तो फेलियर भी टीम का है। तो इस चीज को हटा दे तो सर शायद दूसरा पॉजिटिव एनवायरनमेंट हम बना सकते हैं। और तीसरा, सर, थर्ड पॉइंट की यदि मैं बात करूं, तो Yeah, अगर हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखना है कहीं ना कहीं,
इन सारी चीजों में। तो हमें सबसे पहले एक जो भी, अगर मैं टीम लीडर हूँ तो मुझे बहुत कूल और काम रहना पड़ेगा, और मुझे लोगों को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। ताकि, क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ में, जीवन में हर समय कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और लाइफ इज अ चैलेंज। तो इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम इन सभी चीजों का निवारण कर सकते हैं, I मतलब hundred सॉल्व कर सकते I हैं। 100% agree with you. I will give you good marks for this. However, हाँ only comment is your answer was too lengthy. हाँ जी सर। समझ गए आपको? हाँ जी सर। आपका आंसर इतना बड़ा नहीं होना था। और एक बार ट्राई कीजिए इसको हाँ जी। ब्रीफली देने के लिए। मिस्टर हाँ जी। मोहित, आप आपका ग्रुप का अंदर में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो कैसे सॉल्व करेगा? आपको ग्रुप के लिए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट आना चाहिए। ये कैसे सॉल्व करेंगे उसका बारे में ब्रीफली बता दीजिएगा। सर मुझे लगता है अगर मेरे ग्रुप में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो सबसे पहले मुझे उस कॉन्फ्लिक्ट को समझना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट आया किस वजह से। कॉन्फ्लिक्ट कई चीजों से हो सकते हैं। जैसे कि कोई इन्वायरमेंट नेगेटिव हो रहा है, तो कोई वर्क प्रोजेक्ट हमारा नेगेटिव जा रहा है, तो हम किसी बंदे पे डाल दें, हमें उस चीज को रोकना होगा। यानी जो भी सिचुएशन मेरे सामने आएगी, कि मुझे ये देखना होगा कि वो नेगेटिव हो क्यों रहा है। यदि उस चीज को मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो मैं शायद अपनी टीम के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी बना सकता हूँ, और जिस वजह से नेगेटिविटी आ रही है, उन दो लोगों से बात करके भी उस चीज का रेजोल्यूशन किया जा सकता है। गुड। बट लेकिन यहाँ पर दिया है, आई विल हम्म। नॉट से व्हाट ही हैज गिवन इज द बेस्ट, बट हाँ जी सर। this looks very catchy. For example, हाँ he जी। says हाँ। resolve conflicts हाँ जी by सर। active listening, हाँ जी सर। acknowledging concerns, and negotiating a mutually acceptable solution. ये तो ये इतना डायरेक्ट नहीं है, बट फिर भी इट कैरीज ऑल दैट आपने जो इतना समय बोला है, ये सब इसमें आ गया। हाँ जी एक्टिव सर। लिसनिंग, हाँ जी सर। acknowledging concerns and हाँ जी सर। negotiating a mutually acceptable solution. देख लीजिए, ऐसा भी सोच के हम लोग आंसर कर सकते हैं। गुड। आई मतलब विल गिव यू सर गुड मेरा मार्क्स फॉर यू। आई विल गिव यू गुड मतलब मार्क्स सर फॉर यू। मेरा आंसर मैं अगर इतना लंबा देता हूँ, तो इससे एक्चुअली सर, मैं क्योंकि नेगेटिव पब्लिक नहीं स्पीकिंग में आएगा। जो हूँ। नेगेटिव का हाँ। मतलब उनको समय ही नहीं ना। लेकिन हाँ जी सर। ईसीजीसी में आई थिंक दे आर टॉकिंग फॉर 30 मिनट्स। हो हाँ सकता जी है सर। आपसे इतना डिटेल लिसन करेगा। फिर भी हाँ जी सर। सोच लीजिए, होगा तो ब्रीफ कर दीजिए। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर मोहित जायसवाल। जायसवाल, हाँ जी। पिताजी क्या हाँ काम जी। करते हैं आपका? सर मेरे फादर डॉक्टर हैं। वो एमबीबीएस और होम्योपैथी? होम्योपैथी सर। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। कैन यू डिस्क्राइब a situation where you had to motivate a teammate under pressure? But this question may not always be applicable for all people. For example, आप तो किसी टीम का साथ में काम नहीं किया ना अभी तक? सर मैंने आईटीसी में वर्क किया है, इंपीरियल टोबैको कंपनी में। तो वहां पे मैंने कस्टमर एसोसिएट का जॉब किया है। तो वहां पे अच्छा, मैं टीम के साथ रहा हूँ। तब तो आप आंसर कर सकते हैं। कैन यू हाँ जी सर। डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू मोटिवेट your teammate under pressure? सर जब अंडर प्रेशर की हम बात करते हैं, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, उसमें टीम सबसे बड़ी चीज होती है कि हम जो हमारे टीम मेंबर्स होते हैं, उनको बस उनका प्रोत्साहन बढ़ाते रहें, उनको गुड वर्क और इस टाइप के कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उनको यदि हम बोलते हैं और उनको हमेशा ये दिखाते हैं कि आप भी मेरे बराबर हैं और इक्वलिटी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं टीम आपसे खुद ब खुद मोटिवेट होती है। और सबसे बड़ी चीज होती है सर इसमें एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, और आप लोगों बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी, यानी आप लोगों की चीजों को उनके कहे बिना समझ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सफिशिएंट, ये सफिशिएंट, ये सफिशिएंट। इससे ज्यादा नहीं, बस बस खत्म। हाँ जी सर। ये हाँ हम जी पर सर। दिया है। ऑफर सपोर्ट, सेट हाँ जी क्लियर सर। गोल्स, हाँ जी सर। प्रोवाइड पॉजिटिव reinforcement to boost team morale हाँ जी under tight timelines. इन लोग हाँ का जी सर। पॉजिटिव एनकरेजमेंट करके करके बूस्ट करके जाना है।
दिस इज अगेन सब्जेक्टिव, कैसे बूस्ट करेगा ये तो पता हाँ नहीं है, जी। फिर भी हाँ जी। इंटरव्यू के लिए ये चल जाएगा। मतलब माई आंसर इज। योर आंसर इज ऑल्सो फाइन, कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल फाइन। ठीक है आई सर। विल गिव यू इक्वल, इस चैट जीपीटी को हम 10 देने से आपको 9 देगा। हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रेटजीज डू यू यूज टू बिल्ड ट्रस्ट अमंग कलीग्स एंड क्लाइंट्स? व्हाट स्ट्रेटजी, व्हाट स्ट्रेटजीज में। स्ट्रेटजीज डू यू यूज, स्ट्रेटजीज का मतलब वेज, मेथड्स। हाँ हाँ सर, मेथड मतलब नीति, हिंदी में कहें तो। या हाउ डू यू गो हम्म। अबाउट, व्हाट सर मुझे स्ट्रेटजी, ऐसा या आगे सबसे विश्वास रखने के लिए, सब विश्वास, विश्वास रखना, विश्वास दूसरा विश्वास। विश्वास क्रिएट करने के लिए, हिंदी वर्ड हमको नहीं जानते, दैट इज सर वो विश्वास स्थापित करने के लिए हाँ हिंदी वर्ड होगा स्थापित, विश्वास स्थापित। या स्थापित, तो अगर हाँ कोई विश्वास अगर स्थापित सुन रहा है करने के हिंदी लिए वाला तो। कैसे करेगा बताइए। सर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले किसी से भी आप यदि विश्वास जीतना चाहते हैं या सबको अपने विश्वास में रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उनको ना हर जगह सपोर्ट करेंगे। और आप जो भी वो आपसे शेयर कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ बोलनी है कहाँ नहीं बोलनी, कौन सी चीज कहाँ शेयर होनी। क्योंकि एक टीम में बहुत प्रॉब्लम आती है कि आपके नीचे जो 10 कलीग होंगे, आप ईसीजीसी पीओ हैं, आपके नीचे एजेंट भी होगा, मेरे नीचे एक्सपोर्टर्स भी होंगे, मेरे नीचे 10 एक्सपोर्टर्स होंगे जो चाहेंगे कि मैं बहुत सारी चीजें वो और इधर, अगर वो मुझे कुछ पर्सनल लाइफ में बता रहे हैं तो उसको मैं प्रोफेशनल लाइफ में ले जाके ना शेयर करूं। तो बहुत सारी चीजें जब हम करते हैं तो इससे क्या होता है कि एक विश्वास बनता है। और यदि आप एक एक्सपोर्टर का विश्वास जीतते हैं तो ये हमारी कंपनी के लिए भी बेनिफिशियरी होगा। क्योंकि जब आप, और दूसरी चीज ये है कि जैसे सर कोई भी पॉलिसी अगर किसी एक्सपोर्टर की है और मेरे साथ वो टाई अप में है, तो मैं टाइम टू टाइम उससे फॉलो अप करता हूँ, या उसकी वो मेरे से बात करता है और मुझे याद रहता है कि ये पॉलिसी आपने यहाँ से ये वाली पॉलिसी भी ली थी, इसका क्या हुआ है। तो इससे ना सर एक कंपनी के प्रति और उस एम्प्लॉय के प्रति विश्वास बनता है, जिससे अल्टीमेटली कंपनी को फायदा होता है। फाइन, थैंक यू। बट यहाँ पर आप तो इतना बात किया, इससे बहुत कम करके दे दिया। आई विल हाँ जी बिल्ड सर। ट्रस्ट थ्रू कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन। हाँ मतलब ये सिंपल दे दिया, हाँ, कंसिस्टेंट ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन। हाँ जी सर। ट्रांसपेरेंसी हाँ जी एंड सर। ब्यूटिफुल पॉइंट, फुलफिलिंग कमिटमेंट्स। हम्म। अभी इस बात को अब हिंदी में बोलिए ब्रीफली, लेट मी रिपीट। बिल्ड हाँ ट्रस्ट थ्रू कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन। कंसिस्टेंट को हिंदी में क्या पता नहीं, कंसिस्टेंट। सर अग्रसर, हाँ, लगातार लगातार। हाँ कर दीजिए। देन ट्रांसपेरेंसी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सर इसको हिंदी में बोले, ट्रांसपेरेंसी को हिंदी में नहीं बोलेंगे। होगा तो इंग्लिश में बोल दीजिएगा, कोई बात नहीं। और सर हाँ हाँ, मैं इंग्लिश को देखता हूँ, मैं सेंटेंस में फ्रेम कर लेता ट्रांसपेरेंसी एंड फुलफिलिंग कमिटमेंट्स। हूँ। कमिटमेंट को हिंदी में क्या है? कमिटमेंट को भी सर मुझे ऐसे याद नहीं है, मैं कमिटमेंट एक का बार बोल। कमिटमेंट का मीनिंग इज, हम अभी आपका वादा देने से वो वादा हम फुलफिल करना है। हाँ, तो सर इसका आंसर जो यहाँ पे लिखा है, इसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ बोलिए। कि हमें किसी पे भी सबसे पहले विश्वास स्थापित करने के लिए हमें उससे लगातार उसके संपर्क में रहना होगा, उससे बातचीत करनी होगी, और हमें एक फुल फ्लैश हमें कमिटमेंट दिखानी होगी, यानी उस व्यक्ति की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। फर्स्ट क्लास, ये बहुत हम्म। अच्छा होता। क्वेश्चन हाँ नंबर जी 4, सर। हाउ वुड यू हैंडल अ सिनेरियो where two team members strongly disagree on a project approach? हम इंग्लिश में अभी पढ़ लेते हैं, आप इसको सोच के हिंदी में ब्रीफली दे दीजिए, आपका आंसर भी ऐड करके दीजिए, ठीक है? हम्म। लेट अस लर्न इट दिस वे। अर्लियर तो 3 क्वेश्चन आपने आंसर दिया, बाद में हमारा आंसर हुआ। अभी हम जो हम्म। आंसर अभी इधर पाता है, इसको हाँ हम जी। पढ़ लेते हैं। आपका हाँ जी आंसर सर। भी मिलके आप हिंदी में बोलिएगा। ठीक है सर, ठीक है। Encourage open discussion to understand each viewpoint. ठीक है। Then facilitate a compromise based on
डाटा और शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स। समझ गया? दो तीन हाँ आदमी समझ। बीच में काम फाइटिंग हम्म, करने से हम्म, हम्म, एनकरेज ओपन डिस्कशन। ये तो हम्म, बोलना इजी है, करना मुश्किल है, हम्म, बट हम्म, इंटरव्यू के लिए चल जाएगा। हम्म, Encourage open discussion to understand हम्म, each other's viewpoint, हम्म, then हम्म, facilitate a compromise हम्म, based on हम्म, data और हम्म, shared objectives। बताइए। हम्म। सर मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि इसमें भी पॉइंट में दिया गया है कि सबसे पहले तो हमें हर व्यक्ति को बोलने के लिए इनकरेज करना चाहिए, यानी अपने विचार रखने के लिए हर व्यक्ति की आजादी, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो वैसे ही हमें अपनी टीम में भी उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को रखना चाहिए। दूसरा कि हमें जब कोई भी बात बोली जा रही है, उसके बाद ये निर्णय लेना, उसके बाद ये जब हम किसी निर्णय पे पहुंचे, तो वो निर्णय में बोलने के साथ साथ फैक्ट्स भी इंक्लूड होने चाहिए। यानी हमारा जो डाटा है वो इंक्लूड होना चाहिए कि क्या कंपनी के लिए बेटर है या क्या नहीं है। उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स और डाटा, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। और एक चीज जो इसमें मैं ऐड करूंगा कि यदि दो पर्सन यदि उस प्रोजेक्ट से डिसएग्री हैं, तो हमें ये देखना होगा कि वो टीम कितने मेंबर्स की है। और जितने भी मेंबर्स की टीम है, यदि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि किस ये जो डिसएग्री हैं, इनके पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, या अगर वो प्रोफेशनल रीजन है, सच में उनकी बात स्टैंड कर रही है, तो उस पे एक वही ओपन डिस्कशन टाइप में एक डिबेट होनी चाहिए प्रॉपर, जो कि फैक्चुअल हो पूरी तरीके से। Okay, question number 5. Why is emotional intelligence important in dealing with clients and workers? Emotional intelligence helps interpret non-verbal cues, CUES, cues का मतलब signs, manage emotions constructively, and foster empathy with clients and co-workers. Emotional intelligence helps interpret non-verbal cues, manage emotions constructively, and foster empathy with clients and co-workers. सर इसके लिए मैंने एक आंसर प्रिपेयर भी किया था, मैं हल्का सा वो बोल रहा हूँ, आप बताइएगा मुझे कि इंटरव्यू में बोलना चाहिए मुझे बोलिए या नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। क्योंकि मुझे लग रहा था सर इसका आंसर अगर मैं होता मैं सीधा देता कि सर इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए जरूरी है कि इस अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, तो उससे ये हमें ये पता चलता है कि आप कितना ब्रॉड सोच पाते हैं। जैसे सर उदाहरण के लिए, एक शू बेचने वाली शू कंपनी ने दो बंदों को एक देश में भेजा था, और वहां के लोग जूता नहीं पहनते थे। क्यों? उस हम्म, एक बंदा गया, उसने कहा कि यहाँ सभी लोग नंगे पैर रहते हैं, यहाँ जूते बेचने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। और वहीं दूसरा बंदा गया, उसने कहा यहाँ तुरंत जूते की फैक्ट्री लगाई जाए, क्योंकि यहाँ कोई भी व्यक्ति जूता नहीं पहनता है, यहाँ जूते सेल करने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो ये चीज आपके अंदर तभी आती है जब आपके अंदर एक इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, कि आप हम्म। लोगों के इमोशंस को किस तरीके से समझ पा रहे हैं। Good, you told nicely. This is a good example. Next हाँ one, जी सर। question number 6. Describe a time when you had to give constructive feedback to a peer. सर आई डोंट Describe अंडरस्टैंड a दिस। situation. आंसर दिया है, ऑफर स्पेसिफिक actionable suggestions हम्म, privately. Repeat, offer हम्म, हम्म, specific, every हम्म, word is important. हम्म। Specific हाँ, actionable ऑफर एक्शनेबल suggestions privately, प्राइवेटली, ठीक है सर। emphasizing हम्म, improvement rather than fault finding. हाँ जी सर। अच्छा होता है ना? This answer has come very well. How हाँ हाँ to हाँ ये। give constructive feedback? Feedback में this is the हम्म, one of the important हम्म, conditions. जब हम लोग फीडबैक दे रहे हाँ हैं, जी सर। सिंपली मोहित आई लाइक यू बोलने से तो चलेगा नहीं। किस चीज हाँ। का वजह से आई लाइक मोहित, किस हम्म, चीज का वजह से हम उनको हम्म, डोंट लाइक करते हैं, हम्म, ये तो हाँ क्लियरली जी सर। बताना है। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज योर अप्रोच टू मैनेजिंग स्ट्रेस?
in a fast paced environment. आजकल का काम इतना जल्दी जल्दी करना पड़ता है, बाप रे बाप। हाँ जी। हाँ हमारा जी नहीं सर। है, आप लोग का। सो हाँ जी इसलिए सर। आंसर ऐसा होगा, नंबर हाँ। 1, प्रायोरिटाइज टास्क, हाँ जी सर। then take short breaks, then practice mindfulness techniques, हाँ जी सर। and delegate when necessary. समझ गए हमने क्या हम्म, बोला? माना जो हाँ जी काम सर। है हम लोग का, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले करवाना, हम्म, हाँ जी सर। बीच में चाहिए तो कभी कभी ब्रेक लेना। हाँ जी सर। देन ये इसको कैसे बताएगा, माई प्रैक्टिस माइंडफुलनेस टेक्निक्स, दैट इज करेक्ट सजेशंस को, टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट टेक्निक। करना। एंड चाहिए तो पूरा काम हमने नहीं कर पाएंगे, कोई दूसरे को भी डेलीगेट करना है। सर इसका मुझे लगता है ना थोड़ा सा इफेक्टिव आंसर हो सकता है। हम्म। जैसे इसमें पहला पॉइंट जो है हमारा टास्क वाला, उसको हम्म। हम ये भी कर सकते हैं कि हम जो भी काम होगा उसके टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे, ताकि करेक्ट। हमें इस चीज की सेटिस्फेक्शन रहे कि ये टास्क कंप्लीट हो गया। यदि एक हम, और फिर इसमें वो वाला पॉइंट भी ऐड हो जाता है कि नहीं, डिवाइड इसमें करेंगे तो। इस दे हैव नॉट गिवन दैट, दे शुड हैव टोल्ड prioritize हाँ। tasks after हाँ। subdividing them, दैट हाँ, इज डिवाइड करके करने से तो आसान होता है। गुड। है ना। और दूसरी चीज सर इसमें ये भी जोड़ी जा सकती है कि टास्क, एक बार सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट करोगे, मेरे माइंड से निकल गया। Number 7, what is your approach to managing stress in a fast paced environment? हम्म। और सर एक चीज, हाँ याद आ गया। एक चीज ये कि हम आज जो इसमें माइंड वाला पॉइंट दे रखा है उसको इजी भाषा में, इजी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि हम किसी भी काम को करने के लिए कोशिश करेंगे कि हम स्मार्ट वर्क करें, ना कि हार्ड वर्क, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो स्मार्ट वर्क वाली जनरेशन है। तो किसी भी टास्क को स्मार्ट वर्क के थ्रू कैसे किया जा सकता है, Correct. इस टाइप से सर आंसर आ सकता है इसका, और अच्छा Very, मतलब। very good. Number 8 question, how do you ensure effective communication across different departments in an organization? इसको आंसर दिया है, schedule regular cross department meetings, use clear written communication, and maintain open communication channels. माना कोई दूसरे को डर नहीं होना है इनसे बात करने से, तो हमारा हाँ। स्कोल्ड करेगा, ऐसे में भी क्लाइमेट रखना पड़ेगा जिसका हम्म। वजह से लोग आके हम्म। आपसे फ्रीली बात करेगा। और हम्म। रेगुलरली मीटिंग रखना पड़ेगा, और हम्म। रिटर्न कम्युनिकेशन देना पड़ेगा। हम्म। हम्म। जितना भी अस, ओरली ओरली हमने बताने से भी नहीं चलेगा, ये तो रिटर्न में देने से आपको हाँ हाँ फायदा हाँ, होता है। मतलब So रिटर्न it's कम्युनिकेशन a, होनी चाहिए थ्रू द yeah, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल। it's a good thing। आईटीसी में आपको पीरियोडिकल मीटिंग्स होता था नहीं है? सर मैंने वहाँ पे 3 महीने ही काम करा था। सर ओनली 3 मंथ्स? ओह, हाँ ओनली 3 मंथ्स ही मैंने किया था। अभी मैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हूँ, एफसीआई में, दिल्ली में। अच्छा अच्छा, यू आर हाँ नाउ जी सर। वर्किंग इन एफसीआई? हाँ जी सर। ये तो बोला नहीं, पहले बोला है हमने सुना नहीं, मे बी हम भूल गया नहीं होगा। नहीं, मैंने बोला नहीं। लेकिन सर मैं एक चीज पूछ रहा था, ये जो आंसर्स आप दे रहे हैं ये सर क्या चैट जीपीटी के आंसर्स हैं, या या चैट मतलब जीपीटी आप। का आंसर हमने नहीं प्रिपेयर किया। चैट जीपीटी को हमने क्वेश्चंस देने के लिए बोला, आंसर भी हम्म। उन्होंने उनको देने का बोला, वही दिया है। हम्म। बट वन थिंग, ये हम्म। बात सही है, इट इज हम्म। नॉट दैट दिस इज ऑल करेक्ट, 200% करेक्ट, ये तो हम लोग नहीं हम्म। बोल सकते। हाँ बट हाँ। बट दिस इज नॉट लेस देन 70% करेक्ट। हाँ मतलब सर 70% ये मुझे भी अच्छे लग रहे हैं। और बस सर इसमें एक ही प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि मतलब ना इस टाइप से रट के बोलना मुश्किल है। तो हर कैंडिडेट मुझे लगता है इसको अपने अपने वे में ही बोलेगा। या कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। हाँ। एंड दैट टू एट दैट मोमेंट आपको क्या फीलिंग होता है उसका ऊपर हम्म। होगा। हाँ लेकिन जी सर। आपको
आपको इंटरव्यू में क्या होगा, 90% हाँ जी सर। दे विल आस्क ओनली HR क्वेश्चंस हाँ जी, हाँ जी सर। and very few points about ECGC, export, import, and all. हाँ And जी सर। this is so that way it should not be difficult for you. And you are हाँ जी talking very well. आपको इसका अलावा major questions will be, what are you doing in एफ सी what are आई। you FCI? FCA हाँ में जी क्या सर। काम करते हैं? So like हाँ that जी they सर। will ask. I will ask that in my mock हाँ interview with you. हाँ जी सर। Okay, now question number 9. हाँ जी। Describe an instance where you delegated task effectively to achieve a tight deadline. ये तो हर आदमी को नहीं होगा, हर आदमी तो हम्म। लीडर काम नहीं किया होगा, बट इधर हाँ दिया जी है सर। आंसर। जो पॉइंट हम लोग पहले आपने बोला था, इसको अभी इधर हम्म। में बोलता वो, ब्रेक हम्म। प्रोजेक्ट्स इनटू मैनेजेबल टास्क, हाँ जी सर। मैच देम टू ईच मेंबर स्ट्रेंथ्स एंड फॉलो अप पीरियोडिकली। समझ गया, हाँ जी। बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। ब्रेक हाँ जी। प्रोजेक्ट इनटू मैनेजेबल टास्क, छोटे छोटे, हाँ जी। हाँ देन जी सर। मैच देम टू ईच मेंबर्स, जिसको जिसको से एक काम होगा उसको देना है हमारा। हम्म। आपने सुना है तिरुकुरल? सुना है तिरुकुरल? नहीं सर। तिरुकुरल इज अ कपलेट, 2 लाइन का मैसेज है। हाँ ये जी सर। तमिल में 2000 साल का पहले लिखा हुआ था। हाँ जी सर। जो लिखा है उनका नाम है तिरुवल्लुवर। हाँ जी सर। उनका पोएम्स में क्या होगा, खाली 2 सेंटेंस देगा हाँ जी सर। जिसका अंदर में पूरा दुनिया का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। हाँ जी सर। इस चीज को इन्होंने बताया है, हाँ இதனை जी सर। இதனால் எவன் முடிக்கும் என்று हम्म। ஆய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல்। इसका मतलब ये है, हम्म। ये काम ये आदमी से ठीक से होगा, ये अच्छा हाँ। कर पाएगा, ये समझ हाँ। के जो काम को उसी आदमी का पास दो। दो। हाँ। इतना बढ़िया इंफॉर्मेशन, इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर भी आपको कभी कभी पार्लियामेंट में हमको तिरुकुरल का बारे में बात बोलते हैं। जैसे आपको हिंदी में भी ऐसा में भी कपलेट्स होगा, बट ये हम्म। वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आई हम्म। थिंक इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इन कितना लैंग्वेजेस है, लेट मी चेक अप नाउ इन हम्म। गूगल एंड टेल यू। अरे भाई, हाँ जी ये सर। तो 1 मिनट, google.co.in, तिरुकुरल, तिरुकुरल translated in how many languages? As of May 2024, हाँ जी Tirukural सर। has been translated into 58 languages. हम्म। This includes 143 English translation. हम्म। हाँ जी सर। 143 people they have attempted. This is the point. Doesn't matter, just information. हम्म। हम लोग क्या हाँ जी। करते थे? We were doing this one. Yeah. हाँ जी सर। Now, what are we? Yeah, question number 9 को ऐसा ही ले लेंगे. We will go हाँ for जी the सर। next 10th question. हाँ जी सर। What role does empathy play in? I think ये repeat होता है ये question. What role does empathy play in delivering high हम्म। quality customer service? हम्म। मान लीजिए आप कस्टमर सर्विस काउंटर में बैठा है, आप जब हाँ जी ये सर। आदमी आके अपना प्रॉब्लम बोलते हैं, आप हम्म। उनका जगह पर लगा के देखने से तो आपको ये काम का इम्पोर्टेंस मिलेगा, जिसको हम्म। आप सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। यही हाँ जी आंसर सर। दिया है। एम्पथी हम्म। एड्स इन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स हम्म। thoroughly। हम्म। अरे भाई, कितना पक्का वर्ड्स यूज किया। एम्पथी enables us to understand the customer needs thoroughly, हम्म। leading to personalized and effective solutions.
समझ गया? हम्म। हाँ बढ़िया मतलब है। सर इसको, हाँ अच्छा है, मतलब बोला जा सकता है कि जब भी कोई कस्टमर आएगा तो हम उसे हम एक गुड लिसनर की तरह उसको सुन के और उसको ऐसा उसके वो सॉल्यूशन प्रदान करेंगे जो उस व्यक्ति के लिए पर्सनली बेटर हो, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए हमें अलग अलग सॉल्यूशन होंगे, बेटर हर नहीं, व्यक्ति की हर अलग अलग व्यक्ति के प्रॉब्लम लिए होगी, सूटेबल होगा। सूटेबल हो, मतलब वो हम्म। उस व्यक्ति के लिए अभी सूटेबल नहीं अभी होने चाहिए, हम एक अभी जनरल इन्फॉर्मेशन दे अभी रहे हैं। हम आपसे बात करने से हिंदी में बात करना पड़ेगा। हाँ समझ गई? और कोई हाँ मद्रासी लड़का से बात करने से तो उनसे हम तमिल से बात करने से बढ़िया होगा। हाँ जी सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, इफ यू नोटिस अ कलीग इज अंडर परफॉर्मिंग, हाउ वुड यू एड्रेस द इश्यू? हियर दिया है, डिस्कस परफॉर्मेंस कंसर्न्स प्राइवेटली, हम्म identify causes, and create a supportive plan for improvement. हम्म। ये तो बोलना इजी है, करना बहुत मुश्किल है। हाँ हर चीज में मतलब बहुत कोई, अच्छा आंसर दे दिया, बहुत शॉर्ट आंसर इसने दे दिया और क्रिस्प भी। या दैट इज द थिंग ही ये हैज डन। आंसर ये आंसर बोला भी जा सकता है। या यू कैन इजीली टेल आल्सो। हाँ। And number 12th question, practice 12th question, what steps do you take to stay calm and professional under difficult circumstances? ये क्वेश्चन हर समय पर बैंक इंटरव्यू में पूछता था ये हम्म लोग। टेल मी a difficult circumstance you have come across. So it's a very हम्म regular question. So इसको हम्म आंसर दिया है, प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस, refrain from reacting हम्म impulsively, हम्म and use professional language even in challenging settings. Super बाबा। प्रैक्टिस सेल्फ अवेयर, पहले अपने का समझ लो। हम्म। मतलब सर ये वही वाली स्टोरी है, यू रेड इट इन रामायणा जामवंत और हनुमान स्टोरी, कि दे डोंट रियलाइज या हनुमान जी डोंट रियलाइज हर या फोर्स रिफ्राइन हिज फ्रॉम फोर्सेस। रिएक्टिंग इम्पल्सिवली, इमीडिएटली नहीं बोलना। हाँ जी सर। एंड जब जो बात करते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करना है। ये तो बोलना आसान है, व्हाट इज प्रोफेशनल भगवान जानी, बट इंटरव्यू के लिए चल जाएगा। समझे? हाँ जी। हाँ क्वेश्चन जी नंबर सर। 13, हाउ डू यू मेंटेन ए बैलेंस between assertiveness and diplomacy while dealing with हम्म internal stakeholders? हम्म How do you maintain balance between assertiveness? Assertiveness का मतलब कोई आदमी कोई उपाय बोलने से तो उसको हम सुनेगा नहीं। हाँ Assertiveness, मतलब असर्टिवनेस सर मतलब it's a good thing. मैं Assertiveness is good हाँ thing, हाँ but too हाँ much assertiveness हो गया तो आपको बॉस को गुस्सा आएगा। हाँ इधर में आंसर दिया है, state हाँ your viewpoint clearly हम्म while respecting others' viewpoint. हम्म Offer हम्म data driven justifications हम्म and remain open to feedback. ये तो हम्म आप जानते हैं, एमबीए में पढ़ा है, हर जो हम लोग करते हैं सब हम्म ऑब्जेक्टिव से करना है। सब जो हम्म। बात हम लोग को बोलो भाई उसको देख के करवाना है, उससे हाँ क्या मतलब चीज करेक्ट है। सर इसमें यही है कि हमें अपना ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पुट फॉरवर्ड करना है, हमें दूसरों की बात को रखते हुए इस तरीके से अपना पॉइंट को पुट फॉरवर्ड करना है कि दूसरों की बातों का सम्मान करते हुए दूसरे को भी बुरा ना लगे, और दूसरे के पॉइंट को रखते हुए उसमें करेक्शन करते हुए अपना पॉइंट रखना है, एंड फीडबैक भी देना है। एंड फीडबैक भी सो देना सॉरी, है। रिमेन ओपन टू फीडबैक। कोई दूसरा हाँ आदमी फीडबैक देने से उसको सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा, हाँ जी सर। Question number 14, explain a time you managed cultural differences within your team. यहाँ पर बोला है, engage in open discussions about cultural norms, encourage inclusivity,
and adapt हम्म, communication styles as हम्म, needed. हम्म। This one I will not agree. यहाँ पर what I will मैं भी expect, नहीं हूँ सर। what I will expect as an examiner or interviewer is, I want हम्म, you to tell me one experience you had wherein हम्म, you could हम्म, manage the cultural difference. For example, the say that there is always cultural difference between, say, one हम्म, state and another state, or one group and another हम्म। group within the same सर state. जैसे हम्म, Yeah, बोलिए. जैसे सर अभी हिजाब का मैटर आया था, Correct. There is Karnataka वो में. वाला मैटर। हाँ हाँ। See, but it is all very difficult to have a same view. हम्म, It is हम्म, impossible. हम्म। But सर इसका uh, आंसर ऐसे दिया जा सकता है। tell me, इधर में क्या दिया है? Engage in open discussions about cultural norms, नहीं। encourage inclusivity, and adapt communication styles as needed. इधर भी कुछ they have not given पक्का खास answer. नहीं दिया। Yeah, ठीक है, कोई सर बात नहीं. मैं इसका आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक बार इसका आंसर देता हूँ। सर हम्म, मुझे लगता है ना, इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं कि जब हम प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं ना, तो हमें कल्चर एक पर्सनल मैटर है। मेरा कल्चर मेरा मैटर है, आपका कल्चर आपका हो सकता है। तो इसमें हम आंसर दे सकते हैं कि हमें ना कभी किसी के कल्चर पे कमेंट नहीं करना चाहिए। और जब हम एक टीम वर्क में काम करें, तो हमारा यूनिफाइड एक गोल होना चाहिए। और कल्चर हमेशा पर्सनैलिटी का विषय रहा है। तो कल्चर को हमें बहुत ज्यादा इनकरेज नहीं करना चाहिए जब हम किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। इसका यू कैन ऑल्सो ऐड, सबको हम्म। कल्चर को एक्सेप्ट करवा के हम लोग काम करने से काम चल जाएगा. नहीं सर, क्योंकि हर व्यक्ति के कल्चर होंगे ना। आप कितने कल्चर्स को आप अडॉप्ट एक्सेप्ट कर करते दीजिए ना. रहेंगे। अभी आपका हाँ कल्चर भी हम एक्सेप्ट करेगा, मेरा कल्चर आप एक्सेप्ट करेगा, हाँ सब मिलके काम हाँ। करने से तो अच्छा हो जाता है. ये तो बोलना इजी है, लेकिन सर बोलना इजी है ना, लेकिन वो दुनिया में प्रोफेशनल बहुत मुश्किल लाइफ है. में चलता फॉर नहीं है। एग्जाम्पल हाँ फॉर एग्जाम्पल हिंदूज वी हाँ स्पीक इन वन वे, Muslims हाँ। they think in another हम्म, way, हम्म, हम्म। Christians they think in another way. Among the जैसे सर Christians it's नॉर्मल नॉर्मल सी बात है कि जैसे एक yeah. व्यक्ति नमस्ते बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति सलाम वालेकुम बोल रहा है। तो इसीलिए इसीलिए ऑफिसेज में आप लोग सबसे राम अच्छा राम वर्ड बोलेंगे, चलता है गुड मॉर्निंग। आप हाँ। लोग राम राम तो बोलेंगे इससे ना. क्या होगा, तो इससे क्या होगा सर कि एक बोलेगा तो दूसरे को ठेस पहुंच सकती है। यानी वो डिस्करेज हो सकता है, या उसे इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रोफेशनल कैपेसिटी में लॉस होता है। इसीलिए इन सारी चीजों पे ये है कि आप ऐसे समय पे एक कॉमन स्टैंड ले, कि जो कॉमन सबका, जैसे लैंग्वेज से कल्चरल डिफरेंस है, तो आप इंग्लिश पे आ सकते हैं। You कोई are in और which place? कल्चरल है तो हम You are in which place? Which सर place? दिल्ली। दिल्ली। अच्छा अच्छा, दिल्ली. वैसे दिल्ली मैं थोड़ा राजस्थान से हूँ, लेकिन दिल्ली अच्छा, में मैं दिल्ली तो शुरू से रहा हूँ। इट्स अ मिक्स कॉस्मोपॉलिटन, कोई बात नहीं. हाँ कसम। हाँ जी। या तो व्हाट यू सर ये सेड इज आंसर कैसा रहेगा अगर मैं ऐसे देता हूँ एक इंटरव्यू में तो? सही है, हाँ सही है, आई विल अग्री. हाँ। Next one, 15th question. In your opinion, how does हाँ जी। transparency contribute to better human relations? यहाँ पर दिया है, transparency fosters trust, हम्म prevents misunderstandings, हम्म and creates an environment where everyone हम्म। feels respected. Everyone feels एक्सपेक्टेड और respected. सेफ। Super, super. That is हाँ सबके हाँ पास में रिस्पेक्टेड सर। ट्रस्ट आ हाँ जाता है, हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाते हैं. सबको हाँ। इम्पोर्टेंस अपना अपना फील करते हैं. आई एम हम्म मैनेजर, दिस इज माई हम्म। कंपनी, सो यू फील हाँ योर असिस्टेंट मैनेजर, स्टिल यू फील हाँ ये मेरा हाँ कंपनी है. हाँ। सब ठीक से हो जाएगा. वेरी लेकिन सर नाइस. ये भी बोलने वाली बात ही है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. प्रोफेशनली होता या नहीं है। करेक्ट. हर आदमी बोलने से तो सुनेगा नहीं हम लोग. अभी हाँ एंड अभी जो मोदी जी बोलते हैं वो राहुल तो सुनेगा नहीं है. हाँ। जो राहुल बोलता है वो सकता है मोदी नहीं सुनेगा. हाँ। That is the thing. Anyhow, best wishes. Thank you so much. So I थैंक यू will सर। stop with this today, and if time permits tomorrow,
I will message you. ओके सर। Okay. You send ओके। one message through your चैट number व्हाट्सएप, हाँ। uh, ओके सर। so that I'll remember it. Or I can get it from ECGC group also. Thank you. हाँ। Best wishes. सर 1 मिनट का अगर टाइम हो तो मैं ले या सकता हूँ? बोलिए। सर एक दो चीजें मुझे पूछनी थी कि मैंने हम्म ये प्रिपेयर किया है तो ये ठीक है। सर मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड फाइनेंस पढ़ लिया है, मैंने ईसीजीसी पढ़ लिया है। उसके बाद मैंने ये जो श्रीलंका में मनी क्राइसिस आया था ये पढ़ लिया है। इसके बाद सर मैंने ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सारे पढ़ लिए हैं, निर्भीक स्कीम पढ़ ली है, एमएसएमईज के अभी जो चेंजेस हुए हैं वो पढ़ लिए हैं। और सर जो अभी एक्सपोर्टर्स को जो क्या बोलते हैं 20 करोड़ तक, 10 करोड़ से 20 करोड़ किया, वो पढ़ लिया है। इसके अलावा सर अब मुझे क्या पढ़ने की जरूरत है? See, you also should go through the पैकिंग क्रेडिट का फॉर्मेलिटीज क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट का हाँ फॉर्मेलिटीज हाँ क्या सर, है। लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने पढ़ लिया है प्रॉपरली। देन लेटर ऑफ क्रेडिट में भी आपको टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट होगा, हाँ स्टैंड सर बाय वो लेटर मैंने ऑफ पढ़, क्रेडिट। वो सर मैंने पढ़ लिए हैं। डेफिसिट देन हो गया, बैक टू बैक देन थोड़ा थोड़ा डेफ्ट हो गया, बैक टू। यूसीपी डीसी का बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है सर। और यूसीपी सर डीसी, यूनिफॉर्म कस्टम्स फॉर डॉक्यूमेंटरी क्रेडिट अच्छा, 600। ठीक है। और सर आईसीसी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना है क्या? दिस इंटरनेशनल इज दिस चैम्बर दिस ऑफ इज कॉमर्स। आईसीसी document only. UCP DC, हाँ it is जी सर। ICC document, this one, and also हम्म। Incoterms. हाँ इनको टर्म्स भी सर मैंने कुछ कुछ पढ़ लिए हैं, लेकिन बहुत अच्छे से याद नहीं हो पा रहे हैं। या कोई बात लेकिन वो नहीं। मैंने 11 पढ़ एंड लिए देन हैं। आप गारंटी के बारे में भी ज्यादा पढ़ना पड़ता है। व्हाट इज गारंटी, व्हाट हाँ आर जी। द टाइप्स ऑफ गारंटी, ये सब पढ़ के हाँ जी मन में सर। रख लीजिए। ठीक एंड है। बेस्ट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बाय। थैंक यू सर। ओके सर, बाय।